So, in this lecture, we will discuss question number 13. See, in this question, what we have been asked, we are asked to write down a short note on participatory approach, right? So, basically, what we know is that participatory approach is again one of the approaches for rural development because we are studying rural development programs, unit 2, and in that it is one of the questions or अभी तक हम लोग सारे अप्रोचेस पढ़ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी उनमें से एक है ठीक है सो लेट्स सी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स रिटन हियर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स टू यू कि क्या है कैसे है ठीक है सो पार्टिसिपेटरी अप्रोच इफ़ यू सी द नेम you will get to know that it has something to do with participation है ना participate you all know what does it mean है ना आप लोग different कॉम्पिटिशन्स जो आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे इन दैट यू ऑल पार्टिसिपेट है ना सो पार्टिसिपेट मीन्स भागीदारी या आप अगर किसी चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो वी कॉल इट पार्टिसिपेशन ठीक है सो participatory approach when we are talking about it's related to participation only so let's see the first point which is written here is that this concept has been developed from participatory development सो ऑब्वियसली अभी हम किसके बारे में बात करें पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर रूरल डेवलपमेंट सो ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटरी अप्रोच का ये डेवलप हुआ है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट से दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच द पार्टिसिपेशन of those who are to be developed is there right means the people for whom we are doing this particular process of development those people are involved in the process means they participate in their own development right for example when we are talking that participatory approach for rural development it means we are trying to develop the rural people and when we are saying that it's a participatory development approach or participatory approach that means in this particular type of development programs we will we will just try to encourage the rural people to participate in the development process. This is what is being done in this particular approach. ये जो रूरल पीपल हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए अपने प्रोसेस में खुद जो भी प्रोसेस होंगे फॉर द डेवलपमेंट उसमें खुद पार्टिसिपेट करें ठीक है सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन देयर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट से लिया गया है and participatory development means the development process in which the people for whom that development is to be done they are involved or they participate. Now the second statement is participatory development is a process through which stakeholders can influence and share control over development initiatives and over the decisions and resources that affect themselves. So the same thing is written here again. पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है थ्रू विच stakeholders means the people for whom we are doing this particular development ठीक है stakeholders are the people who are going to be influenced by this particular process जैसे जब आप रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ के जो रूरल पीपल हैं they are also the stakeholder means they are going to be influenced by that particular development process ठीक है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन इन्फ्लुएंस एंड शेयर कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मीन्स जिनका आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो लोग खुद उस डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ उस पर प्रभाव डाल पाएँ उस पर उनका भी कंट्रोल हो राइट जो डिसीजंस हम उनके लिए ले रहे हैं रूरल पीपल के लिए तो अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाने हैं कैसे चलाने हैं उसमें जो डिसीजन मेकिंग करनी है जो निर्णय लेना है उसमें भी वो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो मीन्स वो रूरल पीपल उस चीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए ठीक है तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच में बेसिक जो चीज़ है वो पार्टिसिपेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगी
तो बेसिक जो यहाँ से निकल के आता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच में, वो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच वी फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल पीपल इन देयर ओन डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन जो एक जिस्ट है वो आपको यहाँ पे पकड़ना है। इन सारे ही जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, यही सेम चीज़ बार बार अलग अलग तरीक़ों से कही जा रही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ बीइंग सेड कि जो स्टेक होल्डर हैं दे कैन इन्फ्लुएंस एंड शेयर कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। मतलब जो भी पहल की जा रही है उनके विकास के लिए, जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया, तो मान लीजिए आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, तो उनके डेवलपमेंट में ये एक स्टेप हो सकता है कि आप वहाँ के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने। तो वो जो भी स्टेप्स हैं उनमें जो रूरल पीपल हैं उनका कंट्रोल हो, उनकी आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर किया जाए, है ना, उनका भी इसमें प्रभाव हो कि उनको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। वहाँ के लोगों से आपको उनको इन्वॉल्व करना है, उसमें उनको अवेयर करना है, इन्वॉल्व करना है, वो पार्टिसिपेट करें और फिर वो कुछ डिफरेंट स्टेप्स अभी तक लेते आए होंगे उसको डिस्कस करें आपस में बैठ के कि ये चीज़ें इफ़ वी विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग सो देयर विल बी बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ एरिया। ये जो भी इश्यूज़ वो फेस करते थे, आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, है ना, बाकी हाउसिंग से रिलेटेड आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जाएँ उसमें उन लोगों का इन्फ्लुएंस हो, जो डिसीजन लिए जाएँ कि अब हमें कोई साइंटिफिक अगर मेथड अडॉप्ट करना है तो वो किया जाना चाहिए, नहीं उसके प्रॉस क्या होंगे, उसके कॉन्स क्या होंगे। सो व्हाट शुड वी डू मीन्स इफ़ दे आर जस्ट डेवलपिंग देमसेल्व्स then it's their right to participate to make decisions for themselves, right? जो रूरल पीपल उनका अधिकार है कि वो अपने लिए डिसीजंस खुद ले सकें। सो दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन देयर ओन डेवलपमेंट प्रोसेस। उसी को यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच। द थर्ड पॉइंट सेज दैट the participatory development is a process to engage local population in development projects. Again the same thing, जो लोकल पॉपुलेशन है वो इंगेज हो या वो इन्वॉल्व हो इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लाइक इफ़ यू वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर रूरल एरिया तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वेदर इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करना है, वहाँ के लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट करना है, तो उन सारी चीज़ों में लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना। ठीक है, दिस इज़ योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। देन PD here stands for participatory development. So PD uses local decision making and capacities to steer and define the nature of an intervention. So here what they are trying to do कि local people decision making में involve हो और उनके अंदर जो भी capacities हैं उसका utilization हो सके for various steps which are being taken. Okay, so participatory development में local decision making और capacities का यूज़ होता है। कैपेसिटीज़ किसकी, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं, उनके अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, है ना, उनके अंदर खुद की कैपेसिटी है, तो उन चीज़ों को यूज़ करके अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको किया जाए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट PD एम्स एट, PD means again participatory development. So participatory development aims at achieving localized capital accumulation process based on the skills development and local resources generation. So basically यहाँ पे capital accumulation भी किया जाए local level पे, है ना, और लोकल लेवल पे जो पीपल हैं उनके स्किल का डेवलपमेंट किया जाए और लोकल रिसोर्सेज का जनरेशन किया जाए। अब लोकल रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे आपके पास कुछ वाटर बॉडीज़ अवेलेबल होंगी इस पर्टिकुलर एरिया में, लैंड रिसोर्स अवेलेबल होगा, देन फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, जैसे आपका फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे कुछ अच्छे वैल्यूएबल आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ फ्रूट्स या सम अदर मेडिसिनल वैल्यू के कुछ प्लांट्स अगर वहाँ अवेलेबल हों, उन सारी चीज़ों पे रिसर्च करना और वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनको ऑलरेडी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों से रिलेटेड
होती है, तो उन इंफॉर्मेशंस को यूटिलाइज़ करना, फिर उनको ये बताना कि ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं इसको कैसे वो मार्केट में कॉमर्शियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करना, लाइक, तो आपको ये थोड़े से वर्ड्स यहाँ ध्यान रखने होंगे, दैट इट एम्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का, it aims at achieving a localized capital accumulation process based on the skills development and local resource generation, ठीक है। सो कैपिटल accumulation here is economic वे में भी accumulate करना, जो भी इनकी मनी भी और बाकी जो दूसरी स्किल्स हैं अवेलेबल, उन चीज़ों को accumulate करना और उनकी हेल्प से लोगों का डेवलपमेंट करना, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोकल रिसोर्सेज जनरेशन मीन्स जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइजेशन करना फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट इज सोशल मोबिलाइजेशन। तो सोशल मोबिलाइजेशन इज द सेम थिंग। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टुगेदर द पीपल in order to work together for a particular, for the achievement of a particular goal, that is rural development in this particular context. So when we talk about social mobilization, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि social mobilization means it's related to society, है ना। when you see the word social means it has something to do with the society. इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो लोग हैं, मोबिलाइजेशन मीन्स टू ब्रिंग देम टुगेदर, उनको एक साथ लेकर आना और उनकी हेल्प से उन्हीं का डेवलपमेंट करना इज अ सोशल मोबिलाइजेशन प्रोसेस, right? It means to bring together all the people who are living in that particular area and to make them aware of their problems, their issues, and to encourage them to involve themselves in the process of their own development. This is what social mobilization stands for. See, ठीक है। तो बेसिकली सोशल मोबिलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको एकत्रित करके, एकजुट होकर उनको उनके विकास के कार्यों में जो हम विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं, दैट इज सोशल मोबिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो ये टर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सोशल मोबिलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट essential feature of participatory development approach, right? Seventh point says that PT gives a new self-confidence through which the community can engage in more ambitious project involving collective action and management. Again, what is happening here, that if people will get involved in the decision making process, in their own development process, so these things will inculcate in them, or you can say it will induce in them a self confidence, right? So the self reliance and self confidence जैसे जो qualities हैं, they will be inculcated in those people through this process. तो ये इसका एक advantage है। इसके अलावा जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेगी एंड टुगेदर दे विल टेक द कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिवली वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। इससे क्या होगा, उनके अंदर एक यूनिटी की भावना डेवलप होगी, राइट। एक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की फीलिंग उनके अंदर डेवलप होगी एंड टुगेदर दे विल वर्क फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। उनका स्किल डेवलपमेंट होगा जिससे कि उनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, इस तरह की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उभर कर सामने आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्रोसेस के आपके बेनिफिट्स हैं। इसका एक कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज लोगों को इकट्ठा करना, फिर हर एक इंसान की राय लेना, है ना। तो इस तरह में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत क्विक नहीं होगा। सो देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन दिस अप्रोच ऑल्सो। बाकी आप खुद से भी देख सकते हो, थोड़ा कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा होगा इनिशियल लेवल पे, बट लैटर ऑन ये काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है क्योंकि लोग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में उनके अंदर स्किल्स आपको डेवलप करने हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करनी है, तो वो स्टार्टिंग में इट विल टेक, आप कह सकते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, बट इन लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी वेरी सस्टेनेबल, वेरी इकोनॉमिक। बाकी लोगों का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको आप यूटिलाइज़ करोगे, उनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं।
देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स, उस पे फोकस करना, स्टेटमेंट्स कुछ सिंपल वे में यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, है ना। और बाकी गूगल सर्च कर लेना थोड़ा, ताकि आपको सिंपल सेंटेंसेस में आप अपनी बातों को इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। आई होप दैट आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।